Hello everyone, welcome to my concept classes of science math, and today we are going to start chapter number 1, nutrition in plants of class 7. Okay students, आपने previous class में components of food के बारे में study किया, तो you know about that, like what are the components of food? Carbohydrate, fat, vitamins, proteins. Clear? And these are the very important components and by which the food is made of. Okay. In this chapter, we will talk about nutrients and nutrition. The types of nutrition we will talk about in this chapter and how they obtain their nutrition and their examples. First, we will talk about the nutrients, and as we already learned about that nutrients, what is the nutrients? Some substance that contain in the food that are required to normal growth and development of the body. That all the required substance are called the nutrients. Okay, what are the nutrients? Like carbohydrates, फिर है proteins, then vitamins, then fat, minerals, then fat, and then water. That are the very required substance, and dietary fibers, that are also called roughage. Okay, carbohydrates and fat. कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं. ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमें. और अगर हम बात करें प्रोटीन की, एनर्जी गिविंग फूड. Okay, these two nutrients are called the energy giving food because they gives the energy to our body, and protein nutrients is a body building nutrients. मैं थोड़ा protein body building nutrients, body building nutrients. It means it make the new cells and for growth and repair of the damaged cells. Okay, हमारे बॉडी की डैमेज सेल्स हो जाती है, उनको रिपेयर करने में और बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ यानी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है प्रोटीन. इसका मतलब हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है. ओके, दैट्स व्हाई द प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. फाइट अगेंस्ट diseases. Okay, now then water and dietary fibers are required to body. They are also the important to our body because in our body all the mechanism, all the chemicals reaction take place in the presence of water. So water is very important to transport the required material from one place to other place. Okay, and dietary fiber is the not digestible material. ये digestible नहीं है, बट ये हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो these are the nutrients and we have learned what are the nutrients and that nutrients are present in our body, in our food. So that's why we take the food for proper function of the body. Now we will talk about nutrition. न्यूट्रिशन क्या होता है? अब फूड की बात होगी कि फूड में क्या है. फूड वी गेट द फूड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल से हम फूड ऑब्टेन कर लेते हैं. ठीक है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ फूड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द दीज न्यूट्रिएंट्स. ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं? That process is called the nutrition. It means it is the process. ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के थ्रू
वो ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को फूड से ऑब्टेन करता है. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस स्पेशलाइज द नेम न्यूट्रिशन. Is that clear? Okay, this is the definition of the nutrition. The process of obtaining food by the organism, and organism utilize this food is called nutrition. Okay, this is the process of the nutrition. हम बात कर लेते हैं sources of food की. roughly normally sources of food, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा. sources of food, plant food, plant फर्स्ट एग्जांपल. एंड प्लांट में कौन कौन से आएंगे सोर्सेस ऑफ फूड? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, अनाज जितने भी होते हैं, राइस, व्हीट, मिलेट, दीज आर द सीरियल्स. एंड फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, दाल, जितनी भी दाल है, ये सब प्लांट्स के प्रोडक्ट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्लांट फूड. नेक्स्ट इज एनिमल्स. एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ फूड. लाइक एग्स, वी गेट द एग्स फ्रॉम द एनिमल्स. मीट फ्रॉम द एनिमल. मिल्क वी गेट फ्रॉम द काउ. मिल्क, ghee. These are the examples of animals. Now the question is that किस जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या ये ऑर्गेनिज्म सेम तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं? हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. उनकी बॉडी उस फूड को क्या करती है? यूटिलाइज करती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी को डेवलप करने के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट्स को जो फूड के अंदर है उनको वो क्या करती है? यूटिलाइज करती है और उसको लेती है. तो सारे ऑर्गेनिज्म सेम तरीके से फूड को नहीं खाते. कुछ ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से खाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से. दिस इज द सेम वे इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब हमें कुछ क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनिज्म इस तरीके का न्यूट्रिशन शो करेंगे और ये ऑर्गेनिज्म कुछ अलग तरीके से न्यूट्रिशन शो करेंगे. व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? The method of obtaining food by the organism is called the modes of nutrition. And there are majorly we can classify this mode of nutrition in two parts. What they are? Two parts. Number one, first is autotrophic mode of nutrition. Second is heterotrophic mode of nutrition. तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस को, कि एक होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वन बाय वन वी विल शॉर्टली वी विल टॉक अबाउट दीज टू टर्म्स. इन दोनों टर्म्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस टर्म को थोड़ा ध्यान से देखो और इसमें कुछ अगर इस टर्म को हम डिवाइड करें, इट मींस ऑटो मींस सेल्फ, क्लियर. और ट्रॉफिक मींस फूड बोल सकते हैं या न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, यानी जो अपना फूड सेल्फ बनाता है. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. It means those organisms make their own food by self. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड बाय सेल्फ मतलब खुद बनाता है, उसकी बॉडी में प्रिपेयर हो रहा है फूड, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो वी कैन डिफाइन दिस ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक दोज ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस by the
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस की हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से इन सिंपल सब्सटेंस से वो अगर फूड बनाने की कैपेसिटी रख रहा है वो ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे उनको? ऑटोट्रॉफ्स। थोड़ा सा टर्म्स पे ध्यान देना, ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं। इन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं? सिंपल मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? और ऐसे मोड को, इस तरीके के वेज को हम बोलते हैं autotrophic mode of nutrition. Now we can also write this type of mode of nutrition is called autotrophic. Autotrophic mode of nutrition. Now, what are the example of this autotrophic mode of nutrition? Who show the mode of autotrophic mode of nutrition? Examples की अगर हम बात करें तो all the green plants show the autotrophic mode of nutrition. algae भी क्या करता है? autotrophic mode of nutrition शो करता है. Cyanobacteria, it means the bacteria which show the photosynthesis, जो क्या करता है? photosynthesis perform करता है. ऐसा बैक्टीरिया को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया. ठीक है? और ये भी क्या होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है. क्लियर? तो ये हो गया ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. इट मींस सेल्फ फूड, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. Those organisms which are capable to make their own food from the simple substance like the carbon dioxide and water. Carbon dioxide they get from the atmosphere, and the water they get from the soil. Okay, and by the process of photosynthesis. Examples: green plants, algae, and cyanobacteria. Now the next different way by which the organism get the nutrition. What? Heterotrophic mode of nutrition. And how we can define this term? First of all, see the term and we can see that hetero means other. Hetero means other. And trophic means food. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं खाने के लिए. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कैपेबल नहीं होते हैं, खुद का खाना अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. तो हम उनको, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स. क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स. एंड इस मेथड को या इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस? वी कैन राइट those. We can also write like organisms which cannot prepare their own food. Which cannot prepare the food and depend on other organisms are called heterotrophs. Heterotrophs. And this type of mode is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. It means वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं,
ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे एग्जांपल्स कौन से हैं इसके। इसके एग्जांपल्स हैं एनिमल्स, कार्निवोरस प्लांट्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। इज दैट क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल्स को ऊपर देख लेते हैं। एग्जांपल्स, it means the animals cannot prepare their own food by the process of photosynthesis because we don't have the green pigment chlorophyll in our body, so we are unable to make the food, so we are depend on the other organism like the plants and animals। हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ठीक है। और एग्जांपल्स अगर हम बात करें कार्निवोरस प्लांट्स की बात करते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स, कुछ कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट। पिचर प्लांट आपने देखा होगा, वो कार्निवोरस शो करता है पिचर प्लांट्स। उसके अंदर जैसे ही कोई एनिमल्स आएगा, वो एनिमल्स उसके एक बेल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर वो क्या चला जाता है उसके अंदर, और वो कवरअप हो जाती है, और वो फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, और फिर उसको डाइजेस्ट करके और वो उस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है वो प्लांट। तो इट मींस इट आल्सो द शो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आल्सो। एंड नेक्स्ट इज सैंडी हो गया, और इस फ्लाई ट्रैप। अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो ब्लैडर वॉट भी इसका एक एग्जांपल है। नॉन ग्रीन प्लांट्स आल्सो एग्जांपल, नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम, फंगी, ये सब क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है। इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, फिर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता है। अब वो नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस भी ऑब्वियसली वहां नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो उनकी बॉडी में फूड प्रिपेयर नहीं होगा। इसका मतलब वो अल्टीमेटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे, ठीक है। तो ये कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कुछ न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा और अच्छे से सीखा होगा आपने। नेक्स्ट सेशन में हम और भी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, आगे के टॉपिक्स हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।